यहाँ पे ऊपर आके हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे फेसबुक चैनल KVSRO डेली लाइव पर। आई वेलकम यू ऑल। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव टेकन बाय KVS अथॉरिटीज of Delhi region to make the best use of the time that you are having during this lockdown period. So dear students, today online classes for all the subjects are being started and you can join the live classes on the same Facebook ID KVSRO Delhi Live. Come on, join fast. In this class, we are going to start chapter 1 of class 12 physics from the unit electrostatics. Come on, join fast. Hello dear students, today we will be studying the chapter 1 charges at rest of the unit electrostatics of class 12th. प्यारे बच्चों, in CBSE syllabus, as you all know that the physics paper is set of 70 marks theory and 30 marks for practical, and there is a board examination. There are total 9 units. Now the principles of communication has been deleted from the syllabus. There are some other topics which have been deleted that I will let you know during the course of time. But from this chapter electrostatics, nothing is deleted. In some books, some old NCERT books and textbooks, you will find 1D graph generator, a topic. It is also not in the syllabus. Okay. So this unit electrostatics has a weightage of up to approximately 8 marks. 8 marks are very important.
you require just 23 marks to pass in physics out of 70 in theory, and you have to pass the physics exam separately in practicals and separately in theory. Okay? आप सभी को बच्चे फिजिक्स में प्रैक्टिकल और थ्योरी में अलग अलग पास होना है. तो थ्योरी में पास होने के लिए आपको 70 में से 23 नंबर की जरूरत पड़ती है. बोर्ड का पेपर होता है और उसमें से जो पहला हमारा यूनिट है दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैन गेट यू approximately 8 marks. Okay, so 8 marks are very important. After that you will be left with only 15 marks are required to just pass. After that you may have high aim, you may increase. So first of all we will correct marks. एक एक मार्क्स बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है. Suppose you get 69 out of 70. That one mark will hurt you throughout your whole life. You will think, what could I do to get that mark so that I would have got 70 out of 70. Similarly, you can think of that you score 22 and couldn't score 23. Then you will understand the importance of that one mark. तो बच्चों हमारे जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं, एक सेकंड लाइफ का, एक मिनट, एक घंटा, एक मार्क्स, कई बार ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, तो बिल्कुल एक एक मार्क्स की इंपॉर्टेंस को समझ के चलना है. अब फिजिक्स के सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स को हम किस एंगल से पढ़ें, कैसे पढ़ें कि सो दैट वी कैन स्कोर मैक्सिमम और हमें सब्जेक्ट का थोरो नॉलेज हो. ठीक है, so let us start today's lesson with today's chapter electrostatics. Before starting with the new lesson, I will let you some important point to know. For gaining determination, do curtail your needs. बच्चों आपने देखा होगा कि कई बार बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, दे वर्क वेरी हार्ड, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू स्कोर इन द फिजिक्स पेपर. सो व्हाट इज द फैक्ट बिहाइंड दैट? क्या किया जाए सो दैट कि वी कैन स्कोर हाई और हमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी हो. तो बच्चों इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, हम जो बचपन में याद करने की हैबिट है वो छोड़ देते हैं. जब आप अपनी प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते थे तो आप टेबल को लर्न बाय हार्ट, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 इस तरह याद किया करते थे. बच्चे एग्जाम टाइम में जरूरी होता है कि कॉन्सेप्ट की आपको क्लैरिटी हो, फॉर्मूलाज, इंपोर्टेंट डेफिनेशंस आपको याद हो, सो दैट यू मे अप्लाई डाइवर्जेंट थिंकिंग. आप डिफरेंट तरीके से सोच पाओ. If you do not remember all the formulas, definitions, then how can you apply them to solve numericals? You don't have time to derive the formula. Okay, so for that you have to learn all the formulas, definitions, statement of laws in advance. You don't have to leave this habit of remembering, cramming. It is also important because at the exam time both are important, concept clarity and retention of the concept, retention of the important terms. Then only you will be able to score good marks. Second thing is bachcho presentation, that how we present our content. This is also very important. So I will tell you the presentation techniques,
हाउ टू प्रेजेंट अवर कंटेंट इन अ बेटर वे। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास हमारे घर में कुछ नहीं है, वी जस्ट हैव कूड़ा। ये मान लो कूड़ा समझते हैं आप, झाड़ू लगाते हैं सुबह सुबह, मान लो आपके पास कूड़ा ही है एंड सम गेस्ट इज कमिंग टू योर होम, तो क्या करेंगे आप? उस कूड़े को सारे घर में बिखरा देंगे स्कैटर वे में, यू विल पुट इट इन डस्टबिन, यू विल पुट इट इन डस्टबिन। सपोज यू हैव नथिंग टू वेलकम, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट आपको सफाई से अपने घर को साफ सुथरा रखना है ताकि आने वाले को अच्छा लगे। तो आप उस कूड़े को एटलीस्ट प्रॉपर प्लेस पे डस्टबिन में रखेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली वट एवर कंटेंट यू नो इन द पेपर, it is very important that how you present it, how you present it to the examiner. ठीक है बच्चों, so presentation part I will let you know, how to score good I will let you know. So first of all let us start, this is a tagline to get good marks, ये आपको याद रखनी है लाइफ टाइम। for gaining determination do curtail your, मैं इसको चैट लैंग्वेज में लिख रहा हूं, योर नीड्स। इसका मतलब इंग्लिश में कुछ और निकलता है, मगर इसका फिजिक्स से भी इंपॉर्टेंस है। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की टर्म्स में देखें तो इसका ट्रांसलेशन क्या निकलेगा? इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, इफ यू वांट टू गेन डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग, फॉर दैट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हैव टू कट डाउन योर नीड्स। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ त्याग आपको करना पड़ेगा, बलिदान देना होगा। जैसे आजादी भी, हमारे देश की आजादी भी बिना बलिदान के हमें नहीं मिली, बहुत शहीदों ने बलिदान दिया। ठीक है, तो ये तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ। अब इसका फिजिक्स से क्या ताल्लुक है? आप सोच रहे होगे ये सर ने क्या लिखवा दिया, तो देखिए मैं समझाता हूं फिजिक्स से क्या ताल्लुक है। तो बच्चों एफ, इसका तो पहला जो लेटर है एफ फॉर फॉर्मूला। So when you are studying physics, you will find these important terms. Then graph. Then you will find D for derivation. And then you will find diagrams. Then concept clarity. U for units, और यहां पे मैंने 4, देखिए 5 कैपिटल लेटर्स लिखे हैं, NEEDS। N for numerical, this E for every, and this E for exact, then D for definition, and as for statement of laws and principles। तो बच्चों फिजिक्स को इतने एंगल से स्टडी करना है, जबकि हम क्या करते हैं, जब तैयारी करते हैं तो इतने सारे एंगल से स्टडी नहीं करते। हम एग्जाम देने जाते हैं, जस्ट डेरिवेशन करके चले जाते हैं, फिर बोलते हैं हमारे मार्क्स नहीं आए, ऊपर से हमारा प्रेजेंटेशन माशाल्लाह एग्जामिनर भी देख के खुश हो जाए। ठीक है, तो जब आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आज के बाद जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स के सब्जेक्ट को आप इतने एंगल से पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल एफ फॉर फॉर्मूला, दैट मींस व्हेनेवर यू गेट ए फॉर्मूला ड्यूरिंग डेरिवेशन, कोई भी फॉर्मूला आता है, जब भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो चैप्टर का पहला पेज यू लीव ब्लैंक, एंड डेली व्हेनेवर यू गेट एनी फॉर्मूला यू विल नोट इट डाउन देयर, वहां पे आप नोट करेंगे एंड यू विल लर्न इट बाय हार्ट। जैसे कि आपने बचपन में टेबल याद की थी, इंग्लिश अल्फाबेट्स याद किए थे, हिंदी वर्णमाला याद की थी, ठीक उसी तरीके से आपको फिजिक्स के फार्मूलेज, केमिस्ट्री की रिएक्शंस आपको याद करनी होंगी बच्चों। ये याद करने की हैबिट छोड़नी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब आपको एग्जाम में रिटेन होगा तभी आप प्रोड्यूस कर पाएंगे। जरूरी होता है कि हम एग्जाम में कितना प्रोड्यूस कर पाते हैं, क्या लिख पाते हैं। ठीक है, आपको पूरी नॉलेज है, इफ यू आर नॉट एबल टू राइट इन द एग्जाम तो यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। आई डोंट से दैट मार्क्स आर ओनली इंपॉर्टेंट थिंग, कि मार्क्स ही लाइफ में इंपॉर्टेंट होते हैं।
कंसेप्ट क्लैरिटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट, बट कॉन्सेप्ट समय पर याद भी तो आना चाहिए। अगर समय पर आप अपनी विद्या भूल ही गए तो जैसे कर्ण की तरह, महाभारत में जब कर्ण का रथ फंस गया था तो विद्या भूल गया था, तो भगवान परशुराम से उसको शाप लगा हुआ था कि आप विद्या भूल जाएंगे तब समय पड़ेगा आपको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ, आपको अपनी नॉलेज को हर समय याद रखना है, ठीक है। तो बच्चे फॉर्मूले जो भी आएंगे आप साथ साथ नोट करते जाएंगे, और उनको बिल्कुल लर्न करने की हैबिट बना लो कि मुझे याद करना है। याद कैसे करेंगे? किसी पेज पे लिख के जेब में डाल लो, चलते फिरते घूमते, जब भी whenever you get time just learn formulas. Okay. Second point is graph. ग्राफ आपको जब भी एक फॉर्मूला आएगा तो उसके साथ ग्राफ भी आएगा। फॉर्मूले में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी होंगी, टर्म्स दे रखी होंगी, उनमें रिलेशन होता है, या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है, या इंडिपेंडेंट होंगी। तो उस तरह कुछ ग्राफ्स होते हैं, तो हर फॉर्मूला के साथ एक ग्राफ कनेक्टेड होता है। एंड इन दिस 12th फिजिक्स सिलेबस देयर आर सो मेनी ग्राफ, अराउंड 100। और ग्राफ का क्वेश्चन बच्चों पेपर में आना ही आना है। 1 or 2 क्वेश्चन यू विल गेट इन योर बोर्ड पेपर, फिजिक्स का ग्राफ का क्वेश्चन आएगा। चाहे कोई भी कंपटीशन आप एग्जाम दीजिए, वहां पे आप ग्राफ मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज डेरिवेशन। डेरिवेशन की बच्चों कम से कम 10 to 15 मार्क्स की आती है पेपर में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ आपको मैं स्टेप्स बताऊंगा, वो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं हर डेरिवेशन में, ठीक है। और डेरिवेशन की प्रैक्टिस भी आपको एडवांस में ही करनी है, प्रॉपर तरीके से। कम से कम बोर्ड एग्जाम से पहले हर डेरिवेशन आपको कम से कम 5 बार 10 बार आपने कर रखी होगी, तभी आप एग्जाम में उसको कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये पार्ट हुआ। देन डायग्राम्स, प्रॉपर आई विल टेल यू हाउ टू मेक गुड डायग्राम्स, प्रॉपर डायग्राम्स विद लेवलिंग। अब कुछ लोग आंख बनाते हैं, बड़े हंसी आती है उनकी आंख देखकर। देखो ऐसी, जैसे आई का अगर डायग्राम उनसे बनवाने के लिए कहा जाए तो ऐसा बनाते हैं जैसे कि कोई टेडपोल या मछली बना रहे हैं वो, ठीक है, सामने रेटिना ही नहीं होती है। तो जो भी आप डायग्राम बना रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए, उसकी लेबलिंग होनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस आपको एडवांस में बच्चों करनी पड़ेगी, ठीक है। और इतनी प्रैक्टिस आपको एडवांस में डायग्राम की कर लेनी है सो दैट यू आर एबल टू ड्रॉ इट विद द पेन विदाउट कटिंग, ठीक है। देन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों ये क्या चीज है, जब भी आपके दिमाग में डाउट आए, व्हेनेवर यू आर टेकिंग क्लास, चाहे स्कूल की क्लास हो, चाहे यहां पे मैं आपकी क्लास दे रहा हूं, एंड यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड, सो द बेस्ट टाइम टू आस्क द डाउट इज द टाइम डाउट अराइजेस इन योर माइंड। जैसे ही आपके दिमाग में डाउट आता है, आपको उसी समय पूछ लेना है बच्चे। आपको डाउट घर लेकर नहीं जाना है, क्योंकि डाउट अगर आपने आज नहीं पूछा तो ये लाइफ टाइम डाउट ही रहेगा, ठीक है। तो डाउट कोई भी किसी प्रकार के माइंड में रहने नहीं चाहिए, ठीक। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करनी है, खाली क्रैमिंग नहीं करनी है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम में स्कोर करने के लिए लर्न भी करनी है कुछ चीजें। देन यूनिट्स। तो बच्चों हमने पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड आइदर डायरेक्टली यूजिंग सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक योर स्केल, वेइंग मशीन, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, एनीथिंग, और बाय यूजिंग सम इनडायरेक्ट मेथड्स, ठीक है। जैसे कि आपको मून का डिस्टेंस निकालना है, सन का साइज निकालना है, तो वी डोंट हैव एनी वेइंग मशीन और यू कैन से स्केल टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। This type of distances, this type of measurements we do with the help of some indirect methods, ठीक है बच्चों। तो दो तरह के मेथड्स ऑफ मेजरमेंट हमने पढ़े थे 11th में, डायरेक्ट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट एंड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। तो जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं तो हर फिजिकल क्वांटिटी के साथ, अब फिजिकल क्वांटिटी भी दो टाइप की है, डायमेंशन वाली, डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी, एंड डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ओके। डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी एंड डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशनल कौन सी होती है, जिनकी डायमेंशन होती है, जिनके यूनिट्स होते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव सम यूनिट, उनको बोलते हैं डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी। और जिसकी यूनिट ही नहीं है, कोई डायमेंशन ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि आप फिजिक्स का पेपर करेंगे, न्यूमेरिकल निकालेंगे,
कहीं आपको फोर्स निकालना पड़ेगा, कहीं आपको टॉर्क निकालना पड़ेगा, कहीं पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, कहीं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा, कहीं मैग्नेटिक फील्ड, कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स, कहीं म्यूचुअल इंडक्टेंस, कहीं सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज आपको 12th में निकालनी पड़ेगी, जैसे कि आपने 11th में निकाली थी, फोर्स, एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो व्हेनेवर यू रिप्रेजेंट योर आंसर, फाइनल आंसर जब आप लिखेंगे तो यू विल राइट द आंसर विद प्रॉपर यूनिट। फॉर एग्जांपल, यू गेट फोर्स ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ ए न्यूमेरिकल and the answer is 5 Newton. Okay, so you will write 5 Newton properly लिखना है आपको, you will not write only 5. Okay, तो प्रॉपर, और आपको देखना है कि क्वेश्चन कौन सी यूनिट्स में पूछा गया है। इज इट इन सीजीएस सिस्टम और एमके सिस्टम और एनी अदर सिस्टम। तो जिस सिस्टम में क्वेश्चन पूछा गया है आपको उसी सिस्टम में आंसर देना है। ठीक है, तो यूनिट की इंपॉर्टेंस समझनी है। सो इफ यू डोंट रिप्रेजेंट योर आंसर विद द यूनिट, you will your 1 mark or you can say half mark will be deducted. ठीक है, तो मान लो आपने 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल किया और फाइनली आंसर फोर्स निकालना था एंड यू गेट इट 5 न्यूटन, बट यू डोंट राइट न्यूटन, तो आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो अगर 4-5 न्यूमेरिकल आगे बच्चों फिजिकल क्वांटिटी के आंसर आपने यूनिट के साथ रिप्रेजेंट नहीं किए, तो आप सोच लो 2.5-3 नंबर तो आपका ऐसे चला जाएगा। तो इसीलिए आपके मार्क्स नहीं आते। हम बार बार बोलते हैं कि मैं अच्छा करके आया था पेपर, टीचर ने मेरे मार्क्स काट लिए। बच्चों, टीचर से अच्छा इंसान कोई दुनिया में है ही नहीं। अगर इस दुनिया में कोई आपका सच्चा शुभचिंतक है जो निस्वार्थ भाव से आपके लिए, अपने देश के लिए लगा है, तो वो केवल टीचर है। टीचर को बच्चे कुछ नहीं चाहिए। ए टीचर जस्ट डिराइव हैप्पीनेस फ्रॉम द सक्सेस ऑफ हिज स्टूडेंट्स। टीचर को सफलता, टीचर को खुशी तब मिलती है जब उसके बच्चे सफल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं अपनी जिंदगी में। और एक टीचर को किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, आपसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट, तो ये यूनिट में बता रहा था आपको, यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी आए, चाहे डायपोल मोमेंट आए, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आए, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी आए, जैसे आप 12th में पढ़ेंगे, तो आपको उसका यूनिट प्रॉपर याद करना है। फिर बता रहा हूं आपको, याद करने की हैबिट छोड़नी नहीं है। ठीक है, फिर बाद में अगर आपके मार्क्स कट जाए तो मत बोलना कि टीचर ने मार्क्स काट लिए। कोई भी टीचर मार्क्स नहीं काटता, ध्यान रखो ये बात। चाहे गुस्से में उसने आपको कुछ भी कह दिया हो, बट व्हेन ही अवार्ड्स द मार्क्स, उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में इस तरह की चीजें कभी नहीं चलती बच्चों। ठीक है, इंस्टेड हमें अपने अंदर, अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं, लाइफ में बनना चाहते हैं, तो इंसान को कभी खुद के अंदर ही देखनी चाहिए। तो नेक्स्ट, उसके बाद मुझे लगता है शायद आपको ये नीचे वाला पोर्शन नजर नहीं आ रहा होगा, इसको मैं साइड में लिख देता हूं यहां पे। योर के बाद है नीड्स, NEEDS। Here this N for numerical। तो फिजिक्स में बच्चों 10 to 15 मार्क्स न्यूमेरिकल आता है, बट इफ यू गो फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहां तो आपको न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल मिलेगा। ठीक है, और ये थोड़ी सी विडंबना है कि हमारे यहाँ सीबीएसई में पेपर थोड़ा सा इजी आता है, मगर कंपटीशन एग्जाम्स थोड़े से टफ आते हैं। ठीक है, तो लेवल थोड़ा सा डिफरेंट है। तो बट तो इसके लिए हमें कोई, तो पहले से हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बिकॉज कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा है, हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो एलिमिनेशन भी कहीं ना कहीं करना होता है, बेस्ट टफ निकालना होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप पहले से प्रिपरेशन करें। अगर आप एनसीईआरटी बुक्स को लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ जाते हैं, एंड इफ यू सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स गिवन इन द एनसीईआरटी बुक, आई कैन गारंटी यू, आई कैन अश्योर यू दैट यू कैन पास एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है बच्चों, तो एन फॉर न्यूमेरिकल, तो जो भी डेरिवेशन के दौरान फॉर्मूला आया, तो उस फॉर्मूले को किस सिचुएशन में किस तरह हमें अप्लाई करना है, ये हमें सीखना है बस। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। फॉर्मूले में जो टर्म्स यूज हुई हैं, जैसे कि सपोज आई राइट F इज इक्वल टू MA। ठीक है, तो यहां पे आपको समझना होगा कि F क्या है, M क्या है और A क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। F फोर्स है, M इज द मास एंड A इज द एक्सेलरेशन। Unless we don't know, unless we know these terms, what these terms are, what do they represent, then how will you be able to apply this formula? So you must know the situation,
then when to use a particular formula and what are the terms that are used in that formula. ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए. तो ये भी आपको साथ साथ याद रखना है. फॉर्मूला भी लर्न करना है, जो उसमें टर्म्स हैं वो याद करनी है. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर होगी तो यू विल बी एबल टू अप्लाई द राइट फॉर्मूला इन द राइट सिचुएशन. बस न्यूमेरिकल में यही होता है, हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कोई भी फॉर्मूला कहीं भी लगा देते हैं. तो जब तक हम राइट फॉर्मूला राइट सिचुएशन में अप्लाई नहीं करेंगे तो अच्छे मार्क्स बच्चों नहीं आएंगे. फिर आप टीचर को दोष मत देना. ठीक है. आफ्टर दैट एवरी, ई फॉर एवरी, एग्जैक्ट, डेफिनेशन एंड स्टेटमेंट. जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगी, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटेंस. तो वो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगी बच्चों, तो उनकी डेफिनेशंस भी आपको लर्न बाय हार्ट होनी चाहिए. क्योंकि पेपर में क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि डिफाइन. ऐसे भी आप 4 to 5 मार्क्स से क्वेश्चन आपको नॉलेज लेवल, इसको क्वेश्चन बोलते हैं बच्चों नॉलेज लेवल क्वेश्चंस, जिसमें कि स्टेट वेट डेफिनेशन पूछी जाती है, स्टेटमेंट ऑफ लॉ पूछी जाती है. ठीक है, तो वो डेफिनेशन आपको एग्जैक्ट याद होनी चाहिए. और फिजिक्स एक ऐसा मैच्योर सब्जेक्ट है, इसमें स्टैंडर्ड डेफिनेशंस होती हैं. आप वहां पर अपने आप से बोर्ड एग्जाम में बैठ करके खुद की डेफिनेशन नहीं क्रिएट करोगे. ठीक है, अभी आपने इतनी नॉलेज डेवलप नहीं की है. कल को जब आप पीएचडी कर लेंगे, हायर स्टडीज कर लेंगे, तो तब आपको समझ आएगा कि मैं इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं, सो दैट की मीनिंग ऑफ द कंटेंट डू नॉट चेंज. हम क्या करते हैं, हमारी एक तो इंग्लिश, फिर वही बात है माशाल्लाह, हम क्या करते हैं उसका मतलब ही बदल देते हैं, डेफिनेशन ऐसी बनाते हैं अपनी तरफ से. और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं हमारे देश में चैट लैंग्वेज में भी लिखते हैं. ठीक है, तो आपको डेफिनेशन प्रॉपर लर्न होनी चाहिए. ठीक है, और उसको आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखना है, प्रॉपर वे में आपको किसी भी चीज को डिफाइन करना है. तो उससे भी आपको 4 से 5 मार्क्स आपको बोर्ड के पेपर में मिलेगा. ठीक है. देन स्टेटमेंट ऑफ लॉज. बहुत सारे लॉज हैं फिजिक्स के अंदर, लॉज एंड प्रिंसिपल्स. ठीक है, आप पढ़ते हैं कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना. देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी फिनोमिना. फिनोमिना मतलब होती है बच्चों घटनाएं, विच आर हैपनिंग अराउंड अस. एंड behind each and every phenomena, as you know, there is some basic principle, there is some rule. It seems that someone is running this whole universe. Some people call it God, Allah, Vaheguru, Ram, or anything else, but actually it is science, the principles of science that govern the whole universe. तो बच्चों ये जो principles of science हैं, एग्जैक्ट इनकी जो स्टेटमेंट है वो भी एग्जाम में पूछी जाती है. आपसे पूछा जाएगा स्टेट law, suppose Ohm's law. Suppose the examiner asks you in the board exam, what is Ohm's law? So many students write V is equal to IR, that's it. बताइए, पेपर में क्वेश्चन आता है state Ohm's law, and if you simply write V is equal to IR, so do you expect, suppose the question is of 1 mark, do you expect that you should be given 1 mark full? बताइए, क्या V is equal to IR ये लॉ की स्टेटमेंट है? इट इज जस्ट ए फॉर्मूला. ठीक है बच्चों, और वहां पे जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे कि V क्या है, I क्या है, R क्या है, तो उस फॉर्मूले का भी कोई मतलब नहीं है. ठीक है, I तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हो सकता है. ठीक है, ऐसी R भी कुछ भी हो सकता है. द सेम सिंबल समटाइम्स इज यूज्ड इन फिजिक्स फॉर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का भी एक सिंबल होता है. ठीक है, तो ये तो आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा. और जब भी आपको स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा जाए तो यू विल स्टेट द लॉ प्रॉपरली. सपोज ओम्स लॉ पूछा जाए तो यू विल राइट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यू विल राइट लाइक दिस. The Ohm's law states that the amount of current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference or voltage applied across its two ends, keeping physical conditions such as temperature and mechanical strain constant. ठीक है, unless you write the law in this form, और फिर ये फॉर्मूला भी आपको लिखना है फाइनली
v proportional to I and then v is equal to IR। जब तक इस तरह से आप स्टेटमेंट को नहीं लिखेंगे और फिर ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे बच्चों, आपको फुल मार्क लॉ की स्टेटमेंट का नहीं मिलेगा। फिर आप बोलेंगे टीचर को मेरे तो मार्क्स काट लिए। ठीक है, टीचर इज वेरी मच जेलस, मेरी टीचर ऐसी है, मेरा टीचर ऐसा है वैसा है। ठीक है, मुझे नहीं पढ़ना टीचर के पास। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं बच्चों, टीचर किसी के मार्क्स नहीं काटता, और वो इंसान दुनिया में आपका सच्चा शुभचिंतक होता है जो आपकी कमियां गिनवाता है। वरना अगर आप देखें, अगर कोई भी इंसान देखे तो उसको खुद अपने आप को बेस्ट समझता है, मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं दुनिया में। अगर कोई आपकी कमी गिनवाने वाला है सामने वाला, वही आपको बताता है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, देन ओनली यू कैन इंप्रूव। ठीक है, एंड देयर इज नो लिमिट ऑफ लर्निंग, इंप्रूविंग, राइजिंग हाई, मगर उसके लिए पता तो लगना चाहिए पहले। ठीक है, तो टीचर ही आपको बार बार याद दिलाता है कि आप ये इंप्रूव कर सकते हैं। केवल यही उद्देश्य है टीचर का। टीचर का उद्देश्य है कि मेरा बच्चा, मेरा शिक्षार्थी जिसको मैं पढ़ा रहा हूं, वो अपने लाइफ में कामयाब हो जाए, कुछ बन जाए। ठीक है, इसीलिए वो बार बार समय रहते आपको आपकी कमियां गिनवाता रहता है। उसको डर है कि मुझे मेरे पास से चला जाएगा, जब ये जिस दिन चला जाएगा तो इसकी कमियां कौन गिनवाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वो बार बार आपको आपकी कमियां गिनवाता है। तो ये बच्चों फॉर्मूला हुआ v इज इक्वल टू IR। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट ऑफ लॉ भी देनी है। ठीक है, तो ये अगर हम इतने एंगल से फिजिक्स को पढ़ेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा कहीं पर। ठीक है, न्यूमेरिकल की मैं बात कर रहा था कि कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड कम से कम 4-5 प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशंस। फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत बच्चे घबराते हैं, न्यूमेरिकल पता नहीं क्या आ गया न्यूमेरिकल, मुझे तो मैथ्स नहीं आता, आई कैन डू फिजिक्स, आई कैन डू न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों, मैथमेटिक्स इज नथिंग बट जस्ट ए टूल इन फिजिक्स। आपने देखा होगा कुछ मैकेनिक, अगर अच्छा हमारे पास मोटर कार है या बाइक है, उसमें भी एक टूल किट होती है, छोटी सी टूल किट। ठीक है, बताइए क्या जरूरत है उसकी। अगर मान लो आपकी बाइक में रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप क्या कर सकते हैं, उस टूल किट से निकालकर, क्या आपको पूरा एक्सपर्ट इंजीनियर होना चाहिए क्या बाइक बनाने वाला उस टूल किट को यूज करने के लिए? कोई जरूरत नहीं है। यू जस्ट नो द बेसिक टेक्निक्स, बेसिक यूज, हाउ टू यूज द टूल्स दैट आर गिवन इन द टूल किट। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही मैथमेटिक्स को भी आपको यहां पर एक टूल के रूप में यूज करना है। ठीक है, तो आपको बस यूज करना आना चाहिए कि किस सिचुएशन में बेसिक मैथमेटिक्स एटलीस्ट यू शुड नो। फिजिक्स समझने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको पूरा हाई फाई मैथमेटिक्स आए। इफ यू वांट टू परस्यू हायर स्टडीज, इन दैट केस यू रिक्वायर, सपोज पीएचडी करना चाहते हैं, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा मैथमेटिक्स, थोड़ी सी बेटर नॉलेज की जरूरत है। बट अगर हम बेसिक स्टडीज ऑफ फिजिक्स करना चाहते हैं, जो होनी चाहिए हर इंसान को, तो उसके लिए बच्चों कोई भी हाई फाई मैथमेटिक्स होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बेसिक टेक्निक्स ऑफ मैथमेटिक्स हैं, बेसिक सिंपल इंटीग्रेशन, सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सिंपल डिफरेंशिएशन टेक्निक्स हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री है, आपको बेसिक चीजें अगर आती हैं तो यू कैन इजीली अटेम्प्ट द न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, बेसिक चीजें अपने टीचर से समझनी है, जो कि सभी मोस्टली टीचर्स जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है 11th का तो वो कराते नहीं है। तो जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको किसी भी तरह से फिजिक्स के न्यूमेरिकल से घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आर नथिंग बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सिचुएशन फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही न्यूमेरिकल है। और बच्चों, जब तक किसी भी चीज को अपनी लाइफ में यूज नहीं करते, प्रैक्टिकल सिचुएशन में लेके नहीं आएंगे, तो हम उसको प्रॉपर वे में समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अनलेस यू अटेम्प्ट 4 to 5 numericals on any topic, you can imagine that the topic is not clear to you. Or once you attempt the numericals, 4 to 5 numericals, you can feel the clarity of the topic that you are having. तो आज के बाद से जब भी आप कोई भी नया टॉपिक पढ़ेंगे, कोई भी डेरिवेशन करेंगे, तो उससे रिलेटेड मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम 2 से 3 न्यूमेरिकल जरूर करिए। और जो एनसीईआरटी बुक में आपको न्यूमेरिकल्स दिए हैं, दे आर द बेस्ट। एनसीईआरटी बुक्स हैज बीन रिटन बाय एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स ऑफ द फील्ड। तो आप उसका बार बार यूज करिए। ठीक है, उसको लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़िए। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इतने एंगल से अगर हम फिजिक्स को पढ़ेंगे, फॉर्मूला, ग्राफ, डेरिवेशंस, डायग्राम, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, यूनिट्स एंड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, एवरी एग्जैक्ट डेफिनेशन एंड स्टेटमेंट समझेंगे, तो बच्चों मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका मार्क्स फिजिक्स में कभी नहीं कटेंगे। ठीक है, और फिजिक्स आपको अच्छे से समझ आएगी। राइट, सो नाउ
Let me take some questions if you are having. और भी कुछ लाइव क्लासेस चल रही है, हाँ? कितनी चल रही है? 4-5। Dear learners, at the same time when this physics class is going on, live class in the other subjects for 9th, 10th, 11th and 12th is also going on. You may join those classes as per your requirements. 9th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, 10th में आए वाले, जो 10th में इस बार प्रमोट होने वाले हैं, जिनको लगता है कि वो 9th में पास हो जाएंगे, वो स्टूडेंट्स 10th की क्लास ज्वाइन करें। और जिन्होंने 10th का बोर्ड का एग्जाम दिया है एंड दे आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स, दे शुड आल्सो ज्वाइन द क्लास ऑफ द स्ट्रीम दे विश टू चूज। कि आप साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, कॉमर्स में जाना चाहते हैं या आर्ट में जाना चाहते हैं, तो सभी की लाइव क्लासेस बच्चों हमारी इसी फेसबुक आईडी पर चल रही हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस क्लास को साइमल्टेनियसली ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे बिल्कुल क्वाइट न्यू हैं, वो साइंस स्ट्रीम की, कॉमर्स की भी और आर्ट्स की भी डिफरेंट क्लासेस ज्वाइन करके अपने आप को जज कर सकते हैं कि मुझे कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए। ठीक है, तो आपको 2-4 दिन में, 5 दिन में आपको पता लग जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रीम चूज कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करने के बाद, अपना कैरियर चूज करने के बाद आप अपनी स्ट्रीम चुन सकते हैं। तो केवीएस आरओ दिल्ली के इस इनिशिएटिव के लिए मैं केवीएस आरओ दिल्ली डिवीजन के हमारे डिप्टी कमिश्नर श्री नरेंद्र गोयल जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स ऑनरेबल सीलवाड़ा मैडम, श्री संजीत सर एंड अदर एसीज एंड हायर अथॉरिटीज, I thank you everyone that you started this wonderful opportunity for students during this lockdown period so that they are able to make the best use of the time. तो बच्चों कल से आप लोग सभी बिल्कुल टाइमली क्लास को ज्वाइन करिए, बिकॉज अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए तो आपको क्लास टाइम पे ज्वाइन करनी पड़ेगी। बिकॉज टॉपिक्स इन फिजिक्स आर वेरी मच कनेक्टेड, इंटर रिलेटेड, एंड इफ यू स्किप एनी टॉपिक you will not develop concept clarity. That I told you, one of the important point to get good marks. Okay, so let us start today's chapter, electrostatics. तो बच्चों इलेक्ट्रो मीन्स whenever you find this word electro, electricity, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी डेली आती है, बिजली जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप चलाते हैं। तो whenever you find this word electro, electric, it means someone is talking about charge. Okay, and you know statics. Statics means study of objects at rest, and dynamics is study of objects in motion. So this word electrostatics is comprising of two words, electro plus statics. Okay, electro means charge and static means rest. So what is electrostatics? The definition of electrostatics becomes, electrostatics is the study of charges and their interactions, study of charges and their interactions at rest, by assuming them to be at rest. Dear learners, actually charges are never at rest. In this chapter, we assume, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करेंगे और हम ये मान के चलेंगे कि चार्जेस जो है वो रेस्ट में है। ठीक है, इन द नेक्स्ट यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन दिस चैप्टर वी विल assume charges to be at rest. We will develop some concepts like potential, electric field, and then we will apply those concepts to charges in motion in the next unit, current electricity.
ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एंड इंटरेक्शंस। अब आप सभी के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये चार्ज है क्या चीज एक्चुअली। हमने सुना बहुत है चार्ज के बारे में, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, है ना, ये सुना होगा आपने जूनियर क्लासेस में। आपने सुना होगा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव रिपेल्स पॉजिटिव, नेगेटिव रिपेल्स नेगेटिव, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये हम सुनते आ रहे हैं। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट अ चार्ज इज। चार्ज है क्या, ठीक है। तो बच्चों, चार्ज इज एन एंटिटी, इज द प्रॉपर्टी विच डेवलप्स ऑन ए बॉडी। एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी बॉडी में डेवलप हो जाती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो जाए, बाहर से कहीं से इलेक्ट्रॉन आ जाए या उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो हम कहते हैं कि बॉडी पे चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी, इट इज द एंटिटी which develops on a body due to the deficiency or excess of electrons. This is charge, and it was discovered by Benjamin Franklin when he was flying a kite. तो जब वो पतंग उड़ा रहे थे तो जो सिल्क थ्रेड था, at the same time that silk thread, जो उस सिल्क थ्रेड से बच्चों पतंग को उड़ा रहे थे, तो वो सिल्क थ्रेड उनके हाथ में जो फिंगर थी उससे टच हो रहा था, ठीक है। एंड ड्यू टू दैट ही फेल्ट ए जर्क इन हिज हैंड। जैसे ही लाइटनिंग हुई तो उसे झटका सा अपने हाथ में फील हुआ। तो उन्होंने फील किया कि देयर इज समथिंग विच इज कमिंग डाउन फ्रॉम द स्काई ऑन टू द अर्थ एंड इट कैन फ्लो थ्रू दिस सिल्क थ्रेड। व्हाट वाज दैट? इट वाज नथिंग बट चार्ज। And if this something can travel from that height to the ground, it can travel to one place to another on earth also. जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हो, जो कि पावर स्टेशन से आपकी लोकेलिटी को आपके घर तक जो ट्रांसमिशन लाइन्स है उनके थ्रू आती है, ठीक है बच्चों। सो ही नेम्ड दीज द चार्ज एज रेसिनस एंड विट्रियस। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज को दो नाम दिए, विट्रियस एंड रेसिनस। विट्रियस बाद में इसका नाम पड़ा पॉजिटिव चार्ज एंड दिस रेसिनस इज नेगेटिव चार्ज। सिंपली अब हम चार्ज को दो नाम देते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। बेंजामिन फ्रैंकलिन नेम्ड इट पॉजिटिव एज विट्रियस एंड नेगेटिव एज रेसिनस, ठीक है बच्चों। अब चार्ज इज अगेन ए फिजिकल क्वांटिटी एंड इट आल्सो हैज अ यूनिट। फिर मैं आपको बता रहा हूं, अब इसका यूनिट आपको याद करना है। तो चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, COULOMB। और इसका बच्चों पहला लेटर आपको स्मॉल लिखना है। अगर यू राइट इन सिंबल फॉर्म, जब आप सिंबल फॉर्म में लिखेंगे तो आप कैपिटल C लिखेंगे, बट आप अगर फुल लिखेंगे तो पहला अक्षर छोटा लिखेंगे। क्यों ऐसा है? क्योंकि कूलम इज द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम। और बच्चों जब भी कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर हो, जैसे कि केल्विन यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, एम्पियर ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दे आर द नेम्स ऑफ साइंटिस्ट। सो फर्स्ट लेटर ऑफ द यूनिट शुड बी रिटन एज स्मॉल लेटर, ठीक है। तो स्मॉल लेटर की फॉर्म में उसको लिखना है। तो यहाँ पे कूलम है चार्ज की यूनिट, तो आपको पहला अक्षर स्मॉल लिखना है। अगर आप सिंबल फॉर्म में लिखेंगे तो आपको कैपिटल लेटर की फॉर्म में ही लिखना है। सो दिस इज द यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है बच्चों। और अगर हम बात करें तो जो हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जो एटम के अंदर हैं, कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अगर हम इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स में बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है उस पर चार्ज होता है, आप इसको याद रख सकते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। एंड चार्ज ऑन ए प्रोटॉन इज, इट इज अगेन, प्रोटॉन पे अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो ये है। प्रोटॉन पे अगर मैं चार्ज की बात करूं तो बच्चों प्रोटॉन पे चार्ज है पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल, ये न्यूट्रल है और इस पर कोई चार्ज नहीं है। बच्चों चार्ज को हम डिनोट करते हैं, द सिंबल ऑफ चार्ज इज Q। चार्ज इज डिनोटेड बाय स्मॉल q और कैपिटल Q। चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, ये चार्ज का सिंबल है, ठीक है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करूं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और यू कैन राइट QE
ये वाला है. Charge on proton Qp, it is this one positive, and charge on neutron is 0 because neutron is electrically neutral. ठीक है बच्चों. तो एटम में आपने पढ़ा होगा, जो एटम होता है, एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब क्योंकि उनका नंबर बराबर है, दैट्स व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. क्योंकि जितना चार्ज एक प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव, उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव. इसीलिए एटम बच्चों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. ठीक है. तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है. हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझा, डिफाइन किया. चार्ज मैंने आपको बताया कि चार्ज इज एन एंटिटी, इट इज द प्रॉपर्टी विच डेवलप्स ऑन ए बॉडी ड्यू टू द डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. चार्ज का सिंबल क्यू होता है, चार्ज का यूनिट कूलाम होता है, और जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उन पर चार्ज ये होता है. ठीक है बच्चों. कल से और मैंने आपको कुछ टेक्निक्स बताई जिसके थ्रू हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. ठीक है. हाउ कैन वी स्कोर हाई in the physics paper? Okay, and I told you that this chapter electrostatics will get you approximately 8 marks according to CBSE syllabus. So from tomorrow I request you to join at right time so that you may not skip any topic and you have clarity of the concept. ठीक है प्यारे बच्चों. So thank you very much for giving your valuable time and stay connected for our next class at 11 a.m. Till then, you may have a short break of 15 minutes. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.